Yes, class. Hello, everyone. Hope so. All of you are good, class. Class, as you know that in the last video we have discussed introduction to Euclid geometry and what is the geometry and these all things. है ना? Geometry, what about geometry, what are the uses of geometry, we have already discussed. Class, today's topic is Euclid's axiom, things which are equal, things which are equal to the same thing, which are equal to the same thing, are equal to one another. This is the first postulate, axiom of Euclid's class. If you don't know about the axiom and postulate class, you will look last video and you will watch last video whatever we have posted in your school site class. So these things which are equal to the same things are equal to one another. The meaning is that class, suppose that area of triangle, ये है area of triangle equal to area of rectangle, ठीक है, किसके? area of rectangle. Suppose area of triangles is equal to the area of rectangle. You will know about class rectangle, and opposite sides are equal and each and every angle will be 90 degree, and you will know about this class. So area of triangle equal to the area of rectangle, and area of rectangle equal to the area of a square, class, area of a square class. ये कहता है this one is the suppose first figure, this one is the second figure, this one is the third figure, ठीक है ना? कहता है things which are equal to the same thing are equal to one another, एक दूसरे के equal होंगे क्लास. So suppose that we have just assume that कि let area of triangle equal to the area of rectangle and area of rectangle equal to the area of a square class. Then what happen, ये इसके इक्वल है और ये इसके इक्वल है, therefore you can write area of triangle equal to area of a square, इसके इक्वल होंगे ये दोनों को, है ना? ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है, तो ये तीसरा भी जो होगा क्लास इसके इक्वल होगा. दैट इज द फर्स्ट axiom, things which are equal to the same things are equal to one another class. Hope so you are able to understand class. Now we will discuss next. Yes class, now next is if equals are added to equals, are added to equal are added to equal. किसी भी चीज कोई पहले से इक्वल है क्लास और उसमें इक्वली ऐड करते हैं, when we will add equally whole are equal. अगर suppose that a 1 kg of sugar
ये किसी भी 1 kg फ्लोर, है ना, 1 kg फ्लोर, बोथ आर इक्वल, दोनों इक्वल है ना। एंड सपोज इसमें हम लोग कुछ प्लस करते हैं, प्लस 2 kg शुगर इधर भी, और 2 kg शुगर इधर भी। ओके क्लास, अब यहां पे देखना है क्लास कि व्हाट इज द मीनिंग। ये तो हो जाएगा 3 kg शुगर, है ना, और ये भी 3 kg होगा, बट क्या होगा, फ्लोर प्लस शुगर, है ना, फ्लोर प्लस शुगर, बोथ आर। तो आई एम सेइंग दैट क्लास, ये जो आप 3 kg, इसको हम लोग क्या कहते हैं, मैग्नीट्यूड, है ना, दिस इज द मैग्नीट्यूड। 3 kg will be equal, but sugar and flour both are equal things. No, never. So class, you can say that magnitude of a same kinds, magnitudes of a same kinds can be compare or added. कंपेयर किया जा सकता है और उसमें ऐड भी किया जा सकता है। क्या चीज, दैट विल बी द मैग्नीट्यूड, है ना, क्या ऐड किया जाएगा, मैग्नीट्यूड added, but magnitudes of a different kind cannot be compared. जो मैग्नीट्यूड होगा डिफरेंट काइंड्स का, उसको कंपेयर नहीं किया जा सकता है ना। अब देखो शुगर, इसी में जो होता है, कहा जाता है, आप लोग से पूछा भी जाता है कभी कभी आईक्यू टेस्ट के लिए, और इसका जवाब आप जरूर कमेंट बॉक्स में देंगे कि विच वन इज हैवियर, 1 kg कॉटन एंड 1 kg आयरन। 1 kg कॉटन है और 1 kg आयरन है। क्लास, नाउ यू कैन से दैट विच वन इज हैवियर, कौन सबसे ज्यादा भारी होगा क्लास, है ना। थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे, जिसके पास होगा वो बता देगा तुरंत, है ना क्लास। सो मैग्नीट्यूड्स आर इक्वल, है ना, मैग्नीट्यूड को अगर हम लोग ऐड करते हैं या कंपेयर करते हैं तो वो तो इक्वल आपको मिल जाएगा क्लास। बट ये जो होता है थिंग्स, जो मैग्नीट्यूड के अलावे जो चीज है वो तो इक्वल नहीं होगा, बट मैग्नीट्यूड में कुछ भी इक्वल ऐड किया जाता है या सब्ट्रैक्ट किया जाता है तो वो इक्वल होता है क्लास। इसलिए इट इज सेइंग दैट मैग्नीट्यूड ऑफ सेम काइंड्स, है ना, मैग्नीट्यूड्स ऑफ अ सेम काइंड्स कैन बी कंपेयर एंड एडेड। कंपेयर किया जा सकता है, ऐड किया जा सकता है, बट मैग्नीट्यूड ऑफ द डिफरेंट काइंड्स कैन नॉट बी कंपेयर। जैसे कि आप ले सकते हैं अ लाइन कैन नॉट बी एडेड टू अ रेक्टेंगल। लाइन को नहीं ऐड किया जाता, बट लाइन को तो रेक्टेंगल में ऐड नहीं कर सकते, बट क्लास लाइन से रेक्टेंगल जरूर बनता है ना। सो लाइन कैन नॉट बी एडेड टू रेक्टेंगल, लाइन कैन नॉट बी एडेड टू रेक्टेंगल, नॉर कैन एंगल बी कंपेयर टू अ पेंटागन, है ना। लाइन, जबकि एंगल भी किससे बनता है, लाइन से। पेंटागन किससे बनता है, पेंटागन किससे बनता है, लाइन से। सबका लाइन ज्वाइन, बट जो होता है एंगल और लाइन, पेंटागन, बोथ आर डिफरेंट थिंग्स। बना हुआ तो एक ही चीज से है ना। देखो 1 kg शुगर है, 1 kg फ्लोर है तो दोनों 1 kg। मैंने 2 kg दोनों में ऐड किया, 2 kg बोथ, इन 2 kg इन दिस ऑल्सो, 2 kg इन दिस, दोनों में शुगर ही ऐड करा, बट इसमें फ्लोर प्लस शुगर हो गया और इसमें 3 kg, यानी मैग्नीट्यूड कैन बी एडेड। मैग्नीट्यूड को हम लोग ऐड कर सकते हैं, बट फ्लोर और शुगर दोनों को मिक्स कर देना फिर बेटा, है ना, इट विल बिकम्स डिफरेंट थिंग्स क्लास। सो यू विल कैरी। नाउ
नेक्स्ट इज इफ इक्वल्स आर सब्ट्रैक्टेड, इफ इक्वल आर सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम इक्वल, इफ इक्वल आर सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम इक्वल द रिमेन आर इक्वल। अब इसी को जब हम लोग इक्वल में कोई भी चीज है ना 5 kg है और ये भी 5 kg है, 5 kg है, और अगर दोनों में हम लोग इक्वली सब्ट्रैक्ट करते हैं -2, ये कितना हो जाएगा 3 और 3 क्लास। दिस इज द सब्ट्रैक्शन फॉर्म, सब्ट्रैक्ट करते हैं तभी भी हमें यही आता है क्लास। सो वी विल लुक हियर ऑन नेक्स्ट एक्सियम। अब हम लोग कंपेयर करेंगे नेक्स्ट एक्सियम क्या कहता है हमारा। यस क्लास, नाउ नेक्स्ट axiom is that things which coincide with the one another, जो एक दूसरे से coincides हैं, are equal to one another, जो एक चीज दूसरे चीज से के इक्वल है ना। सपोज दैट कौन किसे, कोई भी एक एग्जाम्पल क्लास यू कैन टेक इट, दैट विल बी द 5 ही ले लेता हूं, 5 है ना। विच कंसाइड विद वन अनदर आर इक्वल टू वन अनदर, जो एक दूसरे से इक्वल है ना। अगर उसको कंसाइड करते हैं यानी उसी को लिख कर करके है ना, जैसे कुछ भी है 5 है ना, तो ये कितना हो गया 10 and 10 है ना। कुछ भी कंसाइड का मतलब होता है एक दूसरे पे ओवरलैपिंग है ना, मतलब एक दूसरे से ऐड करते हैं तो वो क्या होता है इक्वल। यू कैन से दैट क्लास एवरीथिंग इज इक्वल टू इटसेल्फ है ना, यानी कि इफ टू थिंग्स आर आइडेंटिकल्स दे आर इक्वल। आइडेंटिकल मतलब होता है आइडेंटिकल आर इक्वल, मतलब शेप साइज इस तरह में भी अगर इक्वल होते हैं तो वो इक्वल में होते हैं। जैसे कि कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल लेते हैं, वन ट्राइंगल इज कॉन्ग्रेंट टू अनदर ट्राइंगल, देन ईच एंड एवरीथिंग्स इक्वल होता है ना। जैसे कि सपोज एक ट्राइंगल है क्लास, वन ट्राइंगल इज कॉन्ग्रेंट टू अनदर ट्राइंगल, ए बी सी डी ई एफ है ना। अगर बोथ ट्राइंगल्स, इफ बोथ ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रेंट, बोथ आर क्या कहता है कॉन्ग्रेंट, देन क्या हम लोग लिखते हैं एंगल ए इक्वल टू एंगल डी, एंगल बी इक्वल टू एंगल ई एंड एंगल सी इक्वल टू एंगल एफ। और इसकी साइड भी क्या हो जाती है, ए बी इक्वल टू डीई है ना, डीई, और बी सी इक्वल टू ई एफ, बी सी इक्वल टू ई एफ एंड ए सी इक्वल टू डी एफ है ना। इफ दिस टू ट्राइंगल्स आर, और कंसाइड का मतलब होता है एक दूसरे पे रख दो तो दोनों क्या होगा, एक दूसरे को कवर कर लेगा है ना, एक दूसरे पे मतलब ढक देगा है ना। बिल्कुल ऐसा सेम जैसे 1 रुपीज की कॉइन है उसके ऊपर रख दीजिए तो बोथ आर, दोनों शेप साइज में इक्वल होगा क्लास। दैट्स व्हाई वी कैन से दैट कि थिंग्स विच कंसाइड विथ वन अनदर, एक दूसरे पे अगर कंसाइड कर जाता है, बिल्कुल शेप साइज में इक्वल हो जाते हैं, देन आर इक्वल टू वन अनदर, तो वो एक दूसरे के इक्वल हो जाते हैं क्लास है ना। होप सो यू आर एबल टू अंडरस्टैंड क्लास। नाउ होल इज ग्रेटर देन अ पार्ट, होल इज ग्रेटर देन पार्ट। अब क्लास होल सपोज ये एक पिज्जा है ना, और 4 दोस्त मिलकर के बैठ गए, 4 फ्रेंड, हम लोग मिलकर के बैठ गए खाने के लिए। ये हो गया फर्स्ट पार्ट, सेकेंड पार्ट, थर्ड पार्ट है ना। चलो 3 ही लगा लेता हूं। ओके क्लास, 3 फ्रेंड्स हैं, तीनों बैठ गए
तो कहता होल इज ग्रेटर देन पार्ट। अब ये देखो, ये यहां से एक स्लाइस, पूरी वन स्लाइस, एक स्लाइस और ये स्लाइस, ठीक है ना, तीनों जो एक स्लाइस होगा इस तरीके से, है ना, ये इसके क्या हो जाएंगे, आपको तो पता होगा विच वन इज ग्रेटर, ये ग्रेटर होगा, ये ग्रेटर होगा या ये, विच वन, दिस वन ग्रेटर, कोई भी एक पार्ट। तो हमेशा अगर इफ ए इज होल, ए इज होल एंड बी एंड सी इज अ पार्ट ऑफ ए, है ना, क्या हो, बी एंड सी इज अ, बी एंड सी आर, बी एंड सी आर पार्ट ऑफ ए, है ना, बी एंड सी आर पार्ट ऑफ ए, इसका पार्ट ए होगा, बी एंड सी है, तो क्या होगा, ए इक्वल टू बी प्लस सी, बी प्लस सी, तो क्या होगा, ए इज ऑलवेज ग्रेटर देन बी एंड ए इज ग्रेटर देन सी, हमेशा क्या होगा, ग्रेटर होगा क्लास। होप सो यू आर एबल टू अंडरस्टैंड क्लास। Yes, a student. Today's we have already discussed 5 axioms. Today 6 and 7. Things which are double of the same things are equal to one another. Equal to another. Suppose if you have taken a same number and if you want to do it double it, then what you will get? As for example, you can take 2 and 2, same things na, these are the same thing, so you will do it double करेंगे, क्या होगा, double करने पे 4 and 4, it is a equal or not, obviously it is a equal class, so you can say that double of the same thing is another example, 3 and 3, है ना, now you will do it double, then what you will get, that is the 6 equal to 6. Things which are double of the same things, same thing का अगर double आप find out करते हो, you will always get same class. Now next postulate is that things which are half of the same things are equal to one another. ये सारे जो होते हैं इक्वल होते हैं, हाफ डबल करने पे डबल हुआ, हाफ करने पे हाफ, सेम थिंग, एग्जाम्पल सेम थिंग यू विल टेक, अब ये 3 ले लेता हूं, ये भी 3, बोथ आर सेम थिंग, नाउ यू कैन डू इट हाफ, हाफ आधा, आधा का क्या मतलब होता है, 2 से डिवाइड करना क्लास, सो यू विल डू 1.5 and this also 1.5 क्लास, ये भी क्या हो जाएगा, 1.5 हो जाएंगे क्लास, सो बोथ आर इक्वल। अब दूसरा चीज ले लेते हैं, कोई और भी एग्जाम्पल, दैट विल बी 5 and 5, बोथ आर सेम थिंग, एनी नंबर यू कैन टेक इट, सेम नंबर, है ना, एंड डू इट हाफ, व्हाट यू विल गेट, 2.5, है ना, these are the same thing number class, you will always get same। कहता है things which are half of the same thing, किसी भी same things को अगर आप हाफ करते हो तो आपको इक्वल ही मिलेगा क्लास। So hope so you are able to understand these 7 axioms of Euclid's. Now in the next video we will discuss postulate class, so you will learn it properly. Thank you and have a nice day class.